اپنے بچپن کی بہت باتیں مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہیں، مگر میں نے جب سے اپنے سن شعور میں قدم رکھا تو یہی دیکھا کہ میری بڑی آپا جو مجھ سے صرف چند ہی سال بڑی تھی مجھ پر ہر طرح سے حاوی تھی، اور میں ان سے ہر وقت ڈرا کرتی تھی کیونکہ ان کی شخصیت میری نظروں میں بہت ہی بھاری بھرکم تھی۔ آپا ہر وقت مجھے بلا وجہ ڈانٹتی تھی اور امی ابو سے میری جھوٹی سچی شکایتیں کیا کرتی تھی۔ گھر کا کوئی کام یا والدین کی خدمت کرنا تو درکنار، وہ اپنا بھی کوئی کام خود سے نہ کرتی۔ یہ سارے امور مجھے ہی انجام دینے پڑتے تھے۔ آپا کے پہلے امی کے 3 بچے یکے بعد دیگرے پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کافی منتوں مرادوں کے پاپڑ بیلنے کے بعد آپا پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے والدین کی تمام تر توجہ، محبت اور چاہت اپنی جانب کھینچ لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لاڈ پیار میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ آپا کے پیدا ہونے کے 4 سال کے بعد جب میں پیدا ہوئی تو میری پیدائش بھی ان کی چاہتوں میں کوئی کمی نہ لا سکی، اور وہ حسب سابق آپا کی مقناطیسی شخصیت سے چپکے رہے۔ دوسری طرف میں چوں سمجھدار ہوتی گئی، والدین کی محبت کی کمی کا احساس میرے دل و دماغ پر چھاتا چلا گیا، جس کی وجہ سے میری سوچوں میں مایوسی بھرتی چلی گئی۔ تنہائی پسندی میری عادت ہو گئی اور میں خود بخود ہی گھر میں سب سے کٹ کر رہ گئی۔ اکثر یہ خیال میرے دل میں کچوکے لگاتا رہتا کہ والدین کو تو اپنی سبھی اولاد پیاری ہوتی ہے، پھر ایک اولاد کو دوسری پر فوقیت اور اولویت دینا کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے اپنے دل سے اس سوال کا جواب نہ مل سکا۔ چنانچہ جب میں ابو اور امی کی خود پر توجہ نہ پا سکی تو میں نے اپنی ایک الگ دنیا بنا لی، کتابوں اور گھر گھرستی سنبھالنے کی دنیا۔ اس دنیا میں میری ہستی بالکل غرق ہو گئی، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ میں نے آہستہ آہستہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی اور گھر گھرستی کے طور طریقوں میں آپا سے بھی ماہر ہو گئی۔ اس کے باوجود امی اور ابو کی چاہت کی کمی اور بے توجہی میرے دل کا ناسور بنتی رہی، اور میں اکثر سوچتی رہتی کہ کاش میں بھی ممتا کی کریمی سے آشنا ہوتی تو میرے دل میں یہ گھٹن نہ ہوتی، میری راہیں بھی کھل جاتی اور میرا فکر و اعتماد بھی جاگ اٹھتا۔ میں لاشعوری طور پر باپ کی محبت، ماں کا پیار اور تحفظ چاہتی تھی، لیکن ان کی سرد مہری میری روح میں احساس محرومی بھرتی رہی اور وقت کا طائر پرواز کرتا رہا۔ میں اپنی سوچیں جھٹک جھٹک کر اپنی ذات سے بھی بے حس ہوتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک ہی ایک دن چپکے سے اندیکھی بہار نے میری خزاں رسیدہ دل کی دنیا میں ہلکے سے دستک دے دی۔ وہ میری زندگی کا حسین ترین دن تھا جب کسی نے میرے دل کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اس اندھیرے گھر میں مسرتوں کے چراغ جلانے کے متعلق سوچا تھا۔ اس نے مجھے میرے سوکھے لبوں پر نقرئی ہنسی سجانے کے خواب دکھائے تھے۔ یہ فرشتہ صفت انسان میرے چچا زاد اشر تھے، جو حال ہی میں لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے لوٹے تھے۔ وہ کبھی کبھی ابو کے پاس ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ بڑے ہی دلکش اور بہت ہی اسمارٹ تھے۔ میری نگاہیں ان کے مضبوط اور وجیح سراپے پر جیسے جم کر رہ جاتی تھیں۔ وہ ابو کے پاس چند گھنٹے ٹھہر کر چلے جاتے تھے، مگر رفتہ رفتہ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ میرے دل کے کسی گوشے میں سماتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن مئی کی دوپہر تھی، ابا آفس میں تھے، امی اور آپا دونوں شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میں باورچی خانے میں روٹیاں بنا رہی تھی کہ اچانک ہی اشر آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے نہ جانے کہاں سے باورچی خانے کے اندر چلے آئے۔ ایک لمحے کو میری نگاہیں ان کی جانب اٹھیں اور پھر نیچے گر گئی۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچے کیے ہی ان سے کہا کہ ابو امی اور آپا تو گھر پر نہیں ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتے رہے، پھر اچانک ہی میرے کچھ قریب آ گئے اور بہت ہی سلجھے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہنے لگے، شمائلہ، میں تم سے کچھ دنوں سے ایک سوال کرنے کو بے چین تھا، مگر موقع نہیں مل پاتا تھا۔ آج خوش قسمتی سے یہ موقع ہاتھ آ گیا ہے، لہٰذا میں تم سے ایک سوال کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میرے اس سوال کا جواب خوب سوچ سمجھ کر دو۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ خلاف توقع اچانک ہی ان کی زبان سے یہ سنتے ہی جیسے میرے ہاتھ لرز اٹھے، جسم کا سارا خون چہرے پر دوڑ گیا۔
दिल सीने से उछलकर हलक में आ गया और जुबान से कुछ ना निकल सका। और जब जुबान से कुछ ना निकला और हया आलूद निगाहें जुबान बनकर उनकी तरफ उठ गईं, तो उन्हें जैसे खुद ब खुद मेरा जवाब मिल गया। उन्होंने होठों पर एक दिलनशी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, मैं कल ही अम्मी को चची के पास तुम्हारे लिए भेजूंगा। इतना सुनते ही ना जाने कहां से यकबार की आपा का सरापा मेरी निगाहों के सामने घूम गया, जो मेरी पसंदीदा शय पर अपना हक समझती थी। चुनाचे मेरी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, अम्मी राजी नहीं होंगी। ये जुमला अदा करते ही मैंने चूल्हे की तपिश और उनकी आंखों की तपिश को एक साथ अपने दिल के अंदर उतरता हुआ महसूस किया। तभी उन्होंने एक सीधा सा सवाल कर डाला, तुम तो राजी हो ना? चची की रजामंदी मुझ पर छोड़ दें, सब कुछ ठीक कर लूंगा। तभी मेरी जुबान से ये अल्फाज फिसल गए, ठीक है फिर चची को भेजकर देखिए। इतना सुनते ही वो मेरे कुछ करीब आ गए और आहिस्ता से कहा, जरा मेरी तरफ एक बार और तो देखो। मैंने घबरा कर नजरें ऊपर उठा ली। खुशी और सरूर से लबरेज अशर मुझे उस वक्त बेहद अच्छे लगे। मेरी पलकें गिर गईं और वो गुनगुनाते हुए वापस चले गए। उनके जाने के बाद मेरा पूरा वजूद एक अनजानी लज्जत से सरशार हुआ था। सारी जिंदगी में अपनायत के ये चंद लम्हे कितने हसीन थे, जो सिर्फ मेरे लिए थे। शाम के बाद रात आई। उस रात ख्यालात की परवास फिजाओं में रंगीनियां फैलाती रही। उदासियां जाने कहां जा सोई थी। अंग अंग से मुसरतें फूट रही थी। जिंदगी के सारे ख्वाब जैसे पूरे हो गए। दिल की हर धड़कन के साथ एक ही आवाज कानों से टकराती रही, मैं अशर के साथ दूर चली जाऊंगी, बहुत ही दूर, जहां सिर्फ खुशियों का राज होगा, किसी की चाहत और शफकत की कमी का एहसास ना होगा, मन पर छाई हुई उदासियों का कहीं गुजरना होगा। अशर आते जाते और मौका मिलने पर मुझसे चंद बातें जरूर कर लेते। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी अम्मी यानी मेरी चची का एक मेजर ऑपरेशन होने वाला है। उनकी तबीयत ठीक होते ही मैं उन्हें चची के पास भेज दूंगा। मैं दिन भर खामोशी के साथ घर के कामों और अपनी पढ़ाई में मशगूल रहती और रात की तन्हाइयों में सर झुकाए परवरदिगार की बारगाह में अपनी चची की सेहतयाबी की दुआएं मांगती रहती। एक शाम अशर अब्बू के पास बैठकर बातें कर रहे थे कि मैं चाय की ट्रे लेकर गई और ट्रे मेज पर रखे हुए कनखियों से अशर की तरफ देख लिया। सफेद पैंट और सफेद शर्ट में वो किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहे थे। उसी वक्त न जाने कहां से मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश उभरी कि अगर इस सफेद सूट पर काला स्वेटर होता तो इनकी शख्सियत में चार चांद लग जाते। एक बार अब्बू मेरे लिए काला ऊन लाए थे, जिसे मैं फुर्सत ना होने की वजह से बुन नहीं पाई थी, और वो ऊन उसी तरह मेरे बक्से में पड़ा था। एक रात जब घर के तमाम अफराद नींद की आगोश में गुम थे, मैंने चुपके से वो ऊन बक्से से निकाला और अपनी मोहम सी तमन्ना के ज़ेरे असर उससे अशर के लिए स्वेटर बुनना शुरू कर दिया। हर रोज रात की तन्हाई में मैं वो स्वेटर बुनती रहती और जब वो मुकम्मल हो गया तो उसे उसी तरह बक्से के अंदर बंद कर दिया। अशर हमारे घर एक दो दिन छोड़कर आते जरूर थे, मगर मुझ में वो कुव्वत गोयाई पैदा न हो सकी कि मैं उनसे कहती कि आप इस स्वेटर को पहन लें। तकरीबन एक माह बाद जब एक रोज मैं बाथरूम में गुसल कर रही थी, मेरे कानों में आपा के जोर जोर से चीखने की आवाज पड़ी। जब मैं बाथरूम से निकली तो देखा कि आपा मेरे बक्से से तमाम कपड़े निकाल निकाल कर पलंग पर फेंक रही थी। अम्मी के हाथों में वही काला स्वेटर एक सवालिया निशान बना हुआ था और आपा धाड़ धाड़ कर अम्मी से कह रही थी कि अम्मी, जरा इस खामोश रहने वाली मक्कार से तो पूछिए, इसने ये मर्दाना स्वेटर किसके लिए बुन रखा है। आपा के सामने यूं ही मेरी जुबान नहीं खुलती थी। अब इस सूरत हाल ने तो मेरे होश ही गुम कर दिए और बेसाख्ता जुबान से निकल गया, अब्बू के लिए बुना था। इतना सुनते ही कमरे के अंदर से अब्बू की करशदार आवाज सुनाई थी, अरे बदबख्त, हमें बेवकूफ बनाती है, अगर हमारे लिए बुना था तो छुपा कर क्यों रखा था। अम्मी ने वो स्वेटर मेरे ऊपर फेंक मारा और अब्बू गुस्से से कांपते हुए बाहर निकल गए। मगमूम तमन्नाओं और नेक आरजुओं में सलाइयों से बुना हुआ वो स्वेटर जमीन पर पड़ा था और मैं खामोशी के साथ कपड़ों को समेट कर बक्से में डाल रही थी। आपा भी जब वहां से फुनकारती हुई चली गई तो मैंने स्वेटर जमीन से उठाकर दोबारा बक्से में रख दिया और अपने काम में लग गई।
चची की बीमारी ने कुछ ऐसा तूल खींचा कि अशर अम्मी अब्बू के पास अपना पैगाम ना पहुंचा सके, मगर वो जब भी आते मेरे दिल को एक नया हौसला जरूर बख्शते। ये नया हौसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आस को और भी मजबूत तर बना देता। दिन पर दिन गुजरते गए और हर गुजरते दिन के साथ चची की तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। उन्हीं दिनों शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से आपा के लिए रिश्ता आया। ये रिश्ता आपा की सूरत शक्ल से मुतासिर होकर आया था। रिश्ता हर तरह से माकूल था, इसलिए इनकार की कोई वजह न थी। तमाम बातें तय होकर शादी की तारीख पक्की कर दी गई। शादी के दिन घर के आंगन में बहुत चहल पहल थी। दूल्हा वालों के हाथ से बड़ी कीमती बरी आई थी। बड़े बड़े टोकरों में बड़े मेवों और कपड़ों ने लोगों को महवे हैरत कर दिया था। दूल्हा वालों की बरी के साथ आपा के जहेज को देखकर लोगों ने दांतों से उंगलियां दाब ली थी और देखने वालों पर एक आलमे महवियत तारी हो गई थी। वो कौन सी ऐसी कीमती चीज थी जिसे देने में अब्बू और अम्मी ने अपनी दरिया दिली का मुजाहरा नहीं किया था। नायाब से नायाब अशिया भी देने से गुरेज नहीं किया गया था। दुनिया जहान की चीजों और किस्म किस्म के जेवरात से आपा को लाद दिया गया। इन सारे लवाजमात के साथ आपा अपने नए घर के लिए रुखसत हो गई। आपा की शादी के एक माह बाद चची का एक ऑपरेशन हुआ और डॉक्टरों की अनथक कोशिशों की बदौलत वो सेहतयाब हो गई। मैंने परवरदिगार का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उनकी दराजी उम्र की दुआ मांगी। एक दिल फरेब सी शाम को जब अब्बू अम्मी आंगन में बैठे हुए ताजा हवा से लुत्फानंदोज हो रहे थे कि उसी वक्त चची और चचा यानी अशर के अम्मी अब्बू आ गए। उनके हाथों में मिठाइयों के ढेर सारे डब्बे थे। अब्बू और अम्मी ने उन लोगों का पुरतपा खैर मकदम किया। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद चची ने अम्मी और अब्बू के सामने अपने आने का मकसद बयान कर दिया, जिसे सुनकर अम्मी बुरी तरह चौंक पड़ी। उनकी ऊंची हैसियत और शाहाना ठाट बाट से अम्मी हमेशा मरूब रहा करती थी और उनके वहमो गुमान में भी ना था कि चचा उनके यहाँ रिश्ता करने पर आमादा होंगे, वरना वो आपा का रिश्ता अशर के सिवाय कहीं ना करती। चुनाचे अम्मी अंदर ही अंदर दिल महसूस कर रह गईं और ये सोचकर तसल्ली कर ली कि शायद अशर आपा का मुकद्दर ना था। चचा और चची के सामने अम्मी की जुबान न खुल सकी और चची ने आगे बढ़कर मेरी उंगली में बेतहाशा कीमती अंगूठी पहना दी और अगले माह की 20 तारीख पक्की कर दी। और फिर 20 तारीख भी आ गई। आपा की शादी में शिरकत करने वाले सभी अजीजों ने इस शादी में भी शिरकत की थी। इस शहर में चचा के घर आने का हमपल्ला कोई घर ना था और अशर आपा के दूल्हे से कहीं खूबसूरत और पुरकशी शख्सियत के मालिक थे। मगर शादी में शिरकत करने वालों की निगाहें ये देखकर हैरान जरूर थीं कि इस शादी में आपा की शादी जैसा कोई इंतजाम न था। बकौल अम्मी अब्बू के 2 माह पहले ही तो आपा की शादी हुई है, इसलिए इस शादी में इस घर को न ही कुमकुमों से सजाया गया और न ही इसके दरो बाम पर कहीं फूलों की गुलकारियां नजर आई। न बैंड बाजों की आवाजें गूंजी, न बेशकीमत जहेज नजर आया। जबकि आपा की शादी में 1 हफ्ता कबल ही घर को सजाने का एहतमाम कर दिया गया था। इतना हसीन डेकोरेशन किया गया था कि उसकी याद लोगों के दिलों में मुद्दतों कायम रहेगी। घर से जुदाई की घड़ियों के वक्त भी अब्बू और अम्मी के सर्द रवैये की वजह से मेरा दिल अंदर से रो उठा, मगर मेरी जबीं अपने रब की बारगाह में सजदारेज हो गई कि अपने बंदों की खबरगिरी करने वाला वो रहीम और करीम मालिक सबसे बड़ा इंसाफ परवर है। अब्बू और अम्मी ने हमेशा आपा को मुझ पर फोकियत दी और उनका मुकद्दर बनाने के लिए आसमान से चांद सितारे तक तोड़ लाने की कोशिश की, मगर काश वो इतना समझ पाते कि मुकद्दर बनाने और बिगाड़ने वाला तो सिर्फ परवरदिगार है, इंसान के इख्तियार की बात नहीं ये। चुनाचे वो बावजूद कोशिशों के भी आपा का मुकद्दर मुझसे बेहतर ना बना सके। खैर, बचपन की तलखियों का दर्द अपने दिल के अंदर समेटे इस घर से रुखसत होने का वक्त मेरे लिए आ ही गया। मैंने पुरनम आंखों से इस घर के दरोबाम को देखा, जिनसे ना जाने मेरी गुज़िश्ता जिंदगी की कितनी अजियतनाक घड़ियां लिपटी थीं। जहेज के नाम पर अब्बू और अम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। इसके बावजूद मेरे चचा चची और खुद अशर इतने खुश थे कि जैसे उन्हें दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो। मुझे खुद अपने आप पर हैरत थी कि माँ बाप के घर में सबकी सर्दमहरी की वजह से एहसासे कमतरी का शिकार खुद को समझती थी, लेकिन अब मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी।
और शायद मेरी आपा भी ये देखकर हैरत के समंदर में गोताज़न थी। उनके तो वहमो गुमान में भी ना था कि जिस लड़की को वो हमेशा नजरअंदाज करते आ रहे हैं, उस लड़की के मुकद्दर का सितारा इतना बुलंद होगा। आपा ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि जिस छोटी बहन पर बड़ी बहन को हमेशा तरजीह दी गई, उसे घर की दहलीज से इस कदर इज्जत, मोहब्बत और शान के साथ ले जाया जाएगा। उस वक्त आपा के चेहरे के तासुरात को पढ़कर मुझे पड़ोस की खाला की नसीहत याद आ गई, जो मुझे उदास और गमगीन देखकर हमेशा कहा करती थी कि बेटी, अल्लाह पर भरोसा रखा करो, दिल छोटा ना किया करो, तुम्हें हमेशा इस घर में नहीं रहना है। वो अल्लाह बड़ा कारसाज है, अपने याद करने वालों को कभी नहीं भूलता। हमें हमेशा उसी के हजूर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे दिल से की हुई दुआओं को जरूर सुनता है। शायद मेरे दिल से निकली हुई दुआओं ने बारगाह इलाही में शर्फ़े कबूलियत पाई थी। मैं रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। जब आपा VCR पर अपनी पसंदीदा फिल्में देखा करती थी, मैं उन औकात में रब की सजदागाह पर सर रखे आंसुओं की मोतियां लुटा कर दुआ करती थी कि परवरदिगार अपनी शाने किबरियाई से मेरी जिंदगी पर छाए हुए अंधेरों को दूर कर दे। ऐ रहीम मालिक, तू मुझ जैसी कमजोर और गुनहगार बंदी को किसी आजमाइश में ना डाल और मुझ पर अपने रहमो करम का साया कायम रख, क्योंकि तू ही बड़ा कारसाज और बड़ा रहम वाला है। चुनाचे वो वक्त आ ही गया और मैं अपने परवरदिगार के रहमो अनायत के सहारे अपनी गुज़िश्ता तमाम तलखियों को भूलकर अपने अशर के साथ उसके घर आ गई। अब तो मेरी शादी को बहुत अरसा गुजर चुका है। शुक्र है उस मालिक कायनात का कि उसकी रहमत का साया मुझ पर अब भी कायम है। अशर ने मुझसे टूट कर प्यार किया। हमारे दरमियान नाखुशगवारी की कभी कोई दरार नहीं पड़ी। उन्होंने मेरे वालिदैन के रूखे रवैये का कभी मुझसे तस्करा न किया और अपने अजीम होने का सबूत दिया। मेरे दुखी दिल का दामन अपनी मोहब्बत की खुशबू से आबाद कर दिया। हमारे गुलशन हयात में गुलाब और चंबेली के फूल खिले हुए हैं। अशर की अता की हुई जिस मोहब्बत की खुशबू से कभी मेरा कवारा वजूद मुअत्तर हुआ था, उसकी खुशबू आज भी मेरे गुलशन हयात में उसी तरह बिखरी हुई है। वो काला स्वेटर जो मेरी मासूम और पाक मोहब्बत की बुनियाद था, वो आज भी उसी तरह अशर के पास महफूज है और वो उसे हर मौसम सरमा में पहनना कभी नहीं भूलते।